Good morning, students. Yesterday you had study question number 1, 2 and 3. Now we are going to solve question number 4 by explain each of the following using suitable identities. आपको identities का यूज करके आपको इन प्रश्नों का फैक्टर फाइंड करना है। तो कल हम आपको बताए थे कि a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आज हम नाउ we are going to tell you new identities a plus b, right here identities a plus b plus c होल स्क्वायर। a इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। So by using these identities, you can solve these sums, explain each of the following. तो I do मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। हियर a प्लस b प्लस c, इसको x इन प्लेस ऑफ a इक्वल टू x, b इक्वल 2y एंड c इक्वल 4z यूज इन दिस आइडेंटिटीज। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर भी हमने क्या होता है a स्क्वायर। तो a की जगह पर आप a b c राइट कर सकते हो ऊपर। तो a स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b की जगह पर लिखेंगे 2y होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c की जगह पर लिखेंगे 4z होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, then plus 2ab 2 into a into b यानी 2 into x into 2y 2ab plus 2bc, तो 2 राइट करेंगे उसका bc मल्टीप्लाई करेंगे 2y into 4z plus 2ca 2c in the place of c 4z and a in the place of a is equal to x 4zx। now स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 4 4y स्क्वायर प्लस 4 4 16 z स्क्वायर, then 2 2 4 xy plus 2 2 4 4 4 16 16yz plus 4 2 8zdx 8zdx। In this way you can find the value of a plus b plus c square by using the identities a plus b plus c whole square equal a square plus b square plus c square plus 2ab 2 पहले इसको मल्टीप्लाई करके ab then 2bc then 2ca मल्टीप्लाई। तो one time concentrate your minds, है ना। and look here, first expression x, second term 2y, third term 4z। तो right here x first term square plus second term square plus third term square, then plus 2 into first term into second term plus 2 into second term into third term plus 2 into third term into first term। here first term square, second term square, third term square, then 2 first term into second term, first and second plus 2bc means 2 into second term into third term plus 2ca plus 2 third term into first term। you can use the properly ab then bc then ca, ऐसे इसको हम फॉर्मूला मेडअप करते हैं। ठीक इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सेकंड
सेकेंड क्वेश्चन हियर माइनस है, तो सेकेंड के लिए आपको माइनस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखेंगे यहाँ पर 2x minus y plus z whole square. So using these identities, a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab. बस ये है ना, आपकी a की जगह पर x दिया है, b की जगह पर यहाँ पर माइनस होगा माइनस वन एंड c की जगह पर क्या लिखेंगे z. तो राइट हियर a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस प्लस साइन देंगे b स्क्वायर, b की जगह पर रखेंगे माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ab 2 into 2x into minus y 2ab plus 2bc 2 into b की वैल्यू minus y into z 2bc plus 2ca 2 in the place of c use z 2c and a 2x multiply together 2x का होल स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, तो माइनस c हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4xy then 2 minus plus minus 2yz 2yz and here plus the 2 2s are 4j dx 4j dx. In this way you will get your answer second. Understand students? Next question number third. In all these sums you can use the identities a plus b plus c square, but ये माइनस हो या a माइनस है, इसके जब आप b की जगह पर -7 यूज करेंगे, a की जगह पर -2x करेंगे, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर ऐसे आएगा. हम आपको सॉल्यूशन थर्ड में बता रहे हैं. सॉल्यूशन क्या है? -2x प्लस 3y plus 2z whole square. तो ये राइट a स्क्वायर a की जगह पर क्या रखेंगे -2x, पुट द वैल्यू ऑफ a 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर plus 2ab 2 into a into b, it means minus 2x into 3y 2a plus 2bc 2 into b की प्लेस है 3y into 2z 2bc plus 2ca 2 in a place of c 2z, so write 2 into 2z into a minus 2x multiply together, माइनस माइनस से स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाता है साइन, तो प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर. हियर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy. हियर पॉजिटिव 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12yz. here माइनस है, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8j dx. ये का माइनस 2x फर्स्ट टर्म ये, ठीक है. तो इन दिस वे यू विल गेट योर आंसर. तो कैन यू डू द नेक्स्ट सम? I hope you will do in homework the remaining sums. Now we are going to study question number 4.
क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करनी है। फैक्टराइज क्वेश्चन 4। अभी आप पढ़ रहे थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब क्या होगा, इस फैक्टराइज में जो है हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के फॉर्म में हम क्वेश्चंस देंगे और आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर उसको फाइंड करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो आप इसको फाइंड करेंगे तो आप इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर से मैच करेंगे प्लस 3y का होल स्क्वायर b स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ देख रहे हैं कि माइनस है इसलिए हम a को माइनस कर देंगे ताकि 2ab करेंगे तो 2ab करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर है। इसका 2bc करते हैं तो b और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस से माइनस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम राइट करेंगे 4z का होल स्क्वायर। तभी तो माइनस करेंगे तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यू विल गेट योर नेगेटिव साइन। तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है, 2a इंटू b प्लस 2bc प्लस 2b की पुटअप करेंगे 3y इंटू c की जगह पर 4z 2bc प्लस 2ca 2 इंटू c की जगह पर माइनस 4z एंड इंटू 2x। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपने पहले क्या करा था, फैक्टर करा था a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कि आपको जो उसका आंसर दे दिया, आपको क्वेश्चन फाइंड करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्म होता है, आइडेंटिटीज होती है, उसको यूज करेंगे। इसको सबको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से मैच करेंगे। अगर a आपका ऊपर वाले क्वेश्चन से मैच कर जाता है तो यू कैन राइट इट एज a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो हियर we find 2x square equal to हो जाएगा 2 2 जा 4x square मैच कर रहा। सेकंड 3y स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9y स्क्वायर, 4 करेंगे माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा 4 4 जा 16z स्क्वायर। इसको मैच किया 2 2 जा 4 3 जा 12xy मैच किया। इसको देखो माइनस प्लस से हो गया माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, ये भी मैच किया। फिर माइनस प्लस हो गया माइनस 4 2 जा 8 8 2 जा 16x मैच करके। तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो बेटा, इसको राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स 2x a प्लस b माइनस c की जगह 4z होल स्क्वायर। यू कैन राइट इट, है ना, 8a प्लस b माइनस c होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नाउ I am going to tell you second. Your question हो 2x square plus y square plus 8z square minus 2 root 2 xy plus 4 root 2 yz minus 8xz. Here you can write it. Here minus है, आप मालूम है कि 2ab होता है तो 2ab मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना चाहिए, तो एक को माइनस करेंगे एक को प्लस राइट करेंगे। इसको राइट कर सकते हो माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर। यहाँ दिख रहे हैं ये 2 जो है आपका परफेक्ट
परफेक्टली स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो आप जानते हो किसी भी रूट का स्क्वायर करने पर क्या होता है, रूट जो है हट जाता है, 2 2 4 हो जाएगा, रूट 4 यू विल गेट 2। तो आप इस 2 को क्या लिख सकते हैं, किसी भी अगर कोई भी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप उसको रूट का स्क्वायर कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड हो जाता है। तो ये हो गया आपका माइनस 2x² प्लस कर दिए y स्क्वायर प्लस 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 हो जाता है। तो 8 का भी फैक्टर करके आप कर सकते हो, जैसे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 का पेयर बना तो इसको राइट कर सकते हो 2√2। क्या राइट कर सकते हैं, 2√2। इसको लिख सकते हैं प्लस 2√2 z होल स्क्वायर। अब इसी तरह से आप मैच करते जाएंगे, a² प्लस b² प्लस c²। अब क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस लिखेंगे 2 a की जगह पे यूज करेंगे √2x माइनस √2x2a इंटू b की जगह पर 1, ये 2 इंटू √2x इंटू y 2ab प्लस 2bc, 2b के प्लेस पर करेंगे y और z के प्लेस पर क्या है 2√2z 2bc प्लस 2ca, 2 इंटू c के प्लेस पर 2√2z इंटू a माइनस √2x। Then here you can square and compare the questions। √2 का स्क्वायर किया हमने, √2x² y², इसको अभी हमने फाइंड किया था 8z² हो गया। ये देखिए 2√2xy माइनस फिर 2 2 जा 4, 4√2yz, you will get minus minus plus minus 2 2 जा 4 and √2 multiply किया you will get 2, 4 2 जा 8 j dx। Understand? So you can write it as a plus b plus c। So you can write here in a bracket minus √2x plus y plus 2√2z square, z whole square। Understand this time? I told you, I told you question number 1 and 2. In this way, you can solve the next question number 3. Okay, in your homework, you can solve question number 3 from question 4. Now, I am going to take you question number 5. Question number 5, using identities a plus b whole cube, identities plus b cube plus 3ab in a bracket a plus b। So by using these identities you can solve question number 4। Here, question number 4, 2x plus 1 whole cube. As question 2x plus 1 whole cube. You can solve these sums by using the identities a plus b whole cube equal a cube plus b cube plus 3ab in a bracket a plus b। It means first term का cube, then second term का cube, then 3 into first term into second term in a bracket first term plus second term। Understand? So you can solve it 2x plus 1 whole cube. A is in a place of a use 2x and in a place of b use 1। By using these identities a cube, it means 2x का whole cube plus b cube
plus 3ab, 3 into a into b, it means 2x into 1, in a bracket a plus b, 2x plus 1, a plus b. Understand? Then 3 times multiplied here, 3 times multiplied, 2 2s are 4, 4 2s are 8. In this way you will get 8x cube plus 1 1 ja 1, 1 1 ja 1, 3 times multiplied, you will get plus 3 2 ja 6x, in a bracket 2x plus 1. When 6x multiplied with 2x plus 1, you will get your answer. But you know that the index of the any natural number is 0. So 1 2 3 4 अगर आपको मिलता है, इसको हम सबसे लास्ट पे राइट करते हैं, इसलिए पहले हम फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे, उसके बाद इसको राइट करेंगे, उसके बाद 1 को लास्ट पे कर देंगे. तो आप इसको राइट करेंगे कि क्या होगा, 8x plus 6x is multiplied by 2x, 6 2 are 12, and x is multiplied into x, you will get x square plus 6x into 1, 6x plus 1. This one. Understand? In this way, you can find the value of a plus b whole cube equal a cube plus b cube plus 3ab in a bracket a plus b. So by using these identities, you will get your answer to solve question number 1, first, second and third. Do you want any more questions? One question more. Okay. 3a minus 2a minus 3b whole square. whole square. तो a माइनस b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab in a bracket a minus b. Here identities a plus b, sorry, a minus b whole cube equal a cube minus b cube minus 3ab in a bracket a minus b. सेम वही होता है, केवल इसमें पॉजिटिव होता है तो सब प्लस होता है, इसमें माइनस होता है. तो इसको यूज करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब फर्स्ट सेकंड, ये हो जाएगा आपका a क्यूब 2a होल क्यूब प्लस 3b होल क्यूब b क्यूब प्लस 3ab 3 into 2a into 3b माइनस इवन a माइनस होता है इनको next a cube minus b cube minus 3ab in a bracket a minus b 2b minus 3b. You can write it 2 2s are 4 2s are 8 a cube minus 3 3s are 9 9 3s are 27. 3 times multiplied you will get 27b cube minus 3 2s are 6 6 3s are 18 ab in a bracket right 2a minus 3b. When multiplied 18 into 2a minus 18 ab into 2a minus 3b, you will get your answer 8a cube minus 27b cube minus 18 to the 36. a multiply किया a square. In the case of multiplication, index will be added together. इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, 1 1 हो जाएगा 2 and b. Then minus minus plus 18 3 जा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54. You can write 54 a and b index add together 1 and 1 2. 1 and 1 2. In this way you will get your answer 8a cube minus 27b cube minus 36a square b plus 54a b square. So by using these identities you can solve the remaining sums from question number 4. If you have any problem you will ask your teacher. Okay. So then the remaining sums from question number 3 and
question number 4. You can solve by using the identities a plus b whole cube equal a cube plus b cube plus 3ab in a bracket a plus b, and second a minus b cube equal a cube minus b cube minus 3ab in a bracket a minus b, and a plus b plus c whole square equal a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc and 2ca. By using these identities you can solve the remaining sums. If you have any problem, you will ask. Thank you, students.